अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें ज्वाइन किया है मिस रिदा नकवी ने, जो कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल्स पाकिस्तान में से ही कंप्लीट किए थे। इन दिनों वो यूके में होती हैं और यूके केपीएमजी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे ताकि आपकी गाइडेंस हो सके। लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम मिस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Okay, thank you for having me here. It's a pleasure. मिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जर्नी शेयर करें सीए की, कि कैसे आप सीए में आई और कैसे आपने सीए को परसू किया। I was actually a pre-medical student. तो उस वक्त तो हमें ये पता होता है ना सिर्फ कि engineering या doctor, इसके अलावा we don't really know much when we're studying in inter. तो I was one of those. लेकिन eventually I realized कि I don't really want to be a doctor. तो फिर मैंने थोड़ी research करना शुरू की. अब this is actually an important thing जो हमारे यहाँ lack करती है कि people don't have career counseling and people to guide them. तो if you don't have it, do your own research. LinkedIn पे जाओ, लोगों से पूछो, contact people, they'll help you out. तो उसमें फिर eventually I stumbled upon this qualification, and what I really liked about it was कि मेरे जो 2-3 goals थे जो मैं चाहती थी, to be independent as soon as possible, वो इससे cover होता हुआ मुझे नजर आ रहा था. To travel to different places and to kind of have that international exposure. I saw that. तो इसीलिए ना फिर I decided कि ठीक है, this is something I want to do, but I want to complete it as soon as possible. तो एक मेरे अंदर एक drive थी always, right, कि भाई जल्दी से करना है. अच्छा, when I joined the intermediate, CA inter, उसमें क्या था कि I thought कि सिर्फ पढ़ना है बहुत ज़्यादा. मैं हर वक्त लाइब्रेरी में होती थी and I just always used to revise everything, always used to practice everything because I thought मैं ये नहीं करूँगी तो I'm going to be left behind because I'm from pre-medical. I haven't studied maths and everything, right? So ये चीज़ जो है इंटर तक तो चल गई, लेकिन when I joined articleship in 2016, that's when I felt like कि my view on things really changed. Because होता ये है ना कि we are so busy in studying and developing those hard skills that we forget to focus on our soft skills. अब when you're in the firm, you have to communicate. आपको दिमाग में चाहे जितनी भी knowledge है, if you're not able to communicate that, if you're not able to express that, nobody is going to know. तो वहाँ पे एक turning point आया था. वहाँ पे I realized कि I am this shy person who wants to say a lot of things, but I don't know how to, तो फिर I started participating in different events, ICAP के and anything Ferguson के, ताकि जो है ना मेरे अंदर एक वो confidence develop हो. So this is something I want people to know कि देखें आपकी जो personality है ना, it doesn't just depend on one thing. It's not just your hard skills. It is also a mixture of a lot of other things. ठीक है? तो आपने उन सबको भी focus करना है at the same time. तो basically time management is the key यहाँ पे. सही है? अच्छा, eventually I also got to know about CASA. Okay, that is a body that conducts different activities for students. I participated in that. I was basically elected the general secretary. So, these are the few things that I believe have made me this professional that I am today. And then I qualified in January 2020. Usko bhi ek saal ho gaya, I can't believe that. And here I am working in KPMG, Isle of Man, as an assistant manager. So that's my journey up till now. दैट्स ग्रेट। अच्छा मिस, ये बताएं कि पाकिस्तान में हमारे पास दूसरी डिग्रीज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि MBA है, MCOM है, BBA है, तो आपने CA को ही क्यों प्रेफर किया और ये फील्ड लड़कियों के लिए क्यों बेहतर है? और ये बताइएगा कि ड्यूरिंग आर्टिकल्स फीमेल्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या किन उनको क्या क्या परेशानियाँ फेस करने को मिलती हैं? नहीं, आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए. देखें, दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड रिस्ट्रिक्ट यू, राइट? आई नो कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. अब होता क्या है कि ज्वाइन करते हुए जो एक डिफिकल्टीज, मतलब पेरेंट्स के दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ये होते हैं कि भाई किस तरह से काम होगा और मतलब ऑफिस कब जाना होगा, माहौल कैसा होगा. ऑल दीज फियर्स थे. मेरे पेरेंट्स को भी यही थी. तो इसका जो एक अच्छा तरीका होता है टैकल करने का, वो ये है कि आप हर चीज अपने पेरेंट्स से ओपन रखें. आप एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम अपने पास रखें. अब मैं अपने पेरेंट्स को अपने दोस्तों से भी मिलवा दिया करती थी, अपने कॉलीग से भी, ताकि उनको ये ट्रस्ट हो, उनको पता हो कि भाई जहाँ मैं जा रही हूँ उसका माहौल अच्छा है, ठीक है, लोग अच्छे हैं. अब अगर कभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता था कि मुझे लेट बैठना पड़ रहा है काम के लिए, तो उनको टेंशन नहीं होती थी. उनको पता था कि शी इज इन अ गुड प्लेस. इसी तरह से फिर आई फाउंड पीपल हु वर विलिंग टू हेल्प मी आउट. तो देखें, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग भी नहीं है जो आपकी हेल्प नहीं करते. अब मैं अगर लेट बैठती थी तो मेरे सीनियर्स थे जो मुझे बाकायदा घर ड्रॉप भी करते थे. कभी वो बोलते थे कि आप चले जाओ, आप घर से कर लेना, हम कांटेक्ट में रहेंगे ऑन फोन और ऑन ईमेल्स, सो सोल्यूशन ढूंढना है. बेसिक थिंग इज कि अगर आपको ये ज्वाइन करना है एज अ फीमेल, आप ये सोचो कि इज दिस समथिंग दैट आई लाइक टू डू,
मुझे ऑफिस में काम करना पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, मुझे दूसरे डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करना, बोर्ड मीटिंग्स में जाना, ये सब क्या मुझे पसंद है? इज दिस समथिंग आई वुड लाइक टू डू व्हेन आई ग्रो अप? अगर ये सब है तो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट थिंक कि भाई मेरे पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी एंड दैट्स ऑल आई नीड टू डू। अब उसके अलावा क्या है, अगर बीच में लोग आते हैं जो कि आपको डिस्करेज करते हैं, यू डोंट नीड टू लिसन टू देम। आप अच्छे लोग ढूंढें, अपने आप को पॉजिटिव लोगों में सराउंड करें। एंड अब तो इतने इनिशिएटिव्स हो रहे हैं that I've seen, women committee and different people working, and not just women, I've seen men helping out women. So I believe we're going to a better place, and inshallah things will keep on improving. जी मिस, बिल्कुल, ये तो आपके सारे पॉइंट्स ही बिल्कुल वैलिड हैं। अच्छा ये बताइएगा मुझे, जिस तरह ऑनलाइन स्टडी का एक ट्रेंड चल पड़ रहा है और पाकिस्तान में नियर पेयर एक सीए की बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्टडी प्रोवाइड कर रहा है, सीए फाइनलिस्ट को ले लें या बाकी सारे सीए स्टूडेंट्स को ले लें छोटे लेवल पे, एएफसी या कैफ लेवल पे, तो आप ऑनलाइन स्टडी को किस तरह से देखती हैं कि क्या ये सीए स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकता है इन फ्यूचर या अभी? आई एक्चुअली थिंक ये काफ़ी वो है, बेनिफिशियल है, बिकॉज हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क एट द क्लाइंट, तो यूजुअली ना क्लासेस मिस हो जाती थी। मेरे साथ ऐसा काफी दफा हुआ है कि आई वाजंट एबल टू मेक इट। वो बाद में फिर हम उसको कवर कर लेते हैं, हम अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि हमें हेल्प कर दें या टीचर को, राइट। लेकिन अब ऑनलाइन की वजह से क्या हो गया, इट हैज बिकम फ्लेक्सिबल कि अगर आप क्लास नहीं भी अटेंड कर पा रहे तो जब आपको टाइम मिले आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, वो आपकी आती है कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपने अपने आप को इस तरह से यानी कि अपना टाइम मैनेज करके और फोकस होकर चलना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रात को फ्री हो रहा हूँ आफ्टर माय वर्क एंड इट्स लेट एंड आई एम टायर्ड एंड आई नो कि आज क्लास थी जो मैंने मिस कर दी है, तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं फ्रेशन अप हूँ, चाय पीऊँ और उस क्लास को एटलीस्ट बैठ के देखूँ और सुनूँ, मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, राइट। बिकॉज होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो रिकॉर्डेड है, हम देख लेंगे, और वो पाइल अप होते रहते हैं। और फिर जब वो पाइल अप होता है तो एट द एंड हम एक साथ सब देखते हैं, हमारे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने खुद को डिसिप्लिन्ड तरीके से लेके चलना है। आपको पता है कि आपके आगे सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब उनको अवेल किस तरह करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मेरे पास सारी क्लासेस हैं, मैं चाहूँ तो एंड में भी देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रोज एक देख के उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकता हूँ। और रोज एक देखने से ना क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज बैठती भी रहेगी। अब एट द एंड जब आप सब क्रैम करेंगे तो एग्जाम में एवरीथिंग विल गेट मिक्स्ड अप, यू डोंट वांट दैट। सो यहाँ माय एडवाइस इज कि यस, देखें, टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड थिंग, यू नीड टू यूटिलाइज इट फॉर योर ओन एडवांटेज, लेकिन साथ साथ आपने क्या करना है, वही सारी पुरानी चीजें, टाइम मैनेज करके अपना चलना है, आपने प्रायोरिटाइज करना है। जिस वक्त आप जो चीज कर रहे हैं आपने उसको फोकस करना है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उस वक्त ये नहीं सोचूंगा कि भाई मेरे काम में क्लाइंट में वो चीज रहती है एंड मुझे वो भी करना है। नो, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट। और जिस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक कि मेरा वो टॉपिक कवर नहीं हुआ, वो रहता है, नहीं, दैट्स नॉट द टाइम, फोकस ऑन वन थिंग। ओके मिस, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताइएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ली जाए कि अगर एक पर्सन सीए क्वालिफाइड है और या उसके कुछ एग्जाम्स रहते हैं सीए के, तो उसके पास पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या सीन होता है? और जिस तरह की अगर हम मार्केट सिचुएशन देखें कि मार्केट काफ़ी सैचुरेट हो चुकी है, सीए की जॉब्स को ही ले लिया जाए, तो आप यहाँ पे हमें क्या गाइड करेंगे इस सिलसिले में? देखिए, आई थिंक यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ना, मतलब आप जेंडर बेसिस पे वो नहीं कर सकते सेपरेट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटीज दैट यू हैव एंड द टेक्निकल स्किल्स दैट यू हैव, राइट। तो मुझे तो नहीं लगता कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपको इस बेसिस पे जज करते हैं। अगर कोई ऐसा है, बिकॉज आई एम श्योर देयर आर पीपल आउट देयर हु डू दैट, तो ठीक है, यू डोंट डिजर्व टू गो देयर एनीवे, दे डोंट डिजर्व यू। आप ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन देखें जो कि आपको एक्सेप्ट करे फॉर व्हाट यू हैव टू ऑफर, राइट, एंड देयर आर प्लेंटी आउट देयर। अब आजकल यस, जॉब मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, आई एग्री, बिकॉज ऑफ कोविड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट स्टिल देयर आर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, राइट। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें फिर हमें अपनी डिफरेंट स्किल्स पे काम करना है ना, जैसे कि अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो why don't we focus कि अगर if we're not getting a job, why don't we do a course in a different thing so that it helps us in getting a job? ठीक है, मतलब I feel like the requirements are somehow slowly changing. So data analytics is a very big thing. अब उसके लिए आपको you have to work on that. So opportunities are there in Pakistan, yes, and outside Pakistan as well. It doesn't depend on your gender, because मैं यहाँ पे हूँ, I'm in a very different country जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था. Like basically this is Isle of Man. It is an island in UK. जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक जगह है जहाँ पे फॉर्म्स होती हैं, मैं यहाँ जा सकती हूँ। सो आपको पता नहीं होता until you actually go out and you start exploring, ठीक है। एंड यहाँ पे भी during the
interview phases, nobody cared about my gender. All they asked me was आपका prior experience क्या है, अच्छा आपने audit में कौन-कौन से clients किए हैं, आपका कौन सी industry से आप belong करती हैं, stuff like that. So don't think these things will restrict you. They will not. Work on your skills, work on trying to be the best version of you, and then inshallah, hopefully you'll get what you deserve. इन दी एंड मिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी ये उम्मीद रखते हैं कि जब भी हमें कोई इशू होगा या हमारी ऑडियंस को कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो आप ज़रूर हमें टाइम देंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. It's been a pleasure, and I wish you much success in your endeavors. I think ये बहुत अच्छा एक initiative है to get to interview different people so that the students can benefit from it. Best of luck. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it!